Hello everyone, welcome to this session. Today in this video, we will discuss the expected questions of the chapter trigonometry. बच्चों इस चैप्टर में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है. एक तो trigonometric ratios that sin theta is equal to p by s, cos theta is equal to b by s and tan theta is equal to p by b. And sec, cosec and cot are their reverse. आपको वो फॉर्मूला भी याद रखनी है. that is sin theta is equal to tan theta is equal to sin theta by cos theta, tan theta is equal to 1 by cot theta. ये वाला जो रेशियो ये फॉर्मूला याद रखनी है. और दो आइडेंटिटीज दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. बस यही चीजें याद रखनी है और सारे क्वेश्चंस हम कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन आवर VST. If 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta into cos theta, prove that tan theta is equal to 1 or 1 by 2. तो हमें ये गिवन है वो हमें प्रूव करनी है. हमें tan theta पूछी गई है और we know the formula that tan theta is equal to sin theta by cos theta. हमें पता है tan theta is equal to sin theta by cos theta, तो हमें गिवन यही है. हम इससे tan थीटा को तो हम यहाँ ये जो साइन है इधर इसको tan में कन्वर्ट करेंगे. विल कन्वर्ट दिस साइन थीटा इनटू tan थीटा. तो कैसे करेंगे? बाय डिवाइडिंग इट बाय cos थीटा. यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो लेट्स डिवाइड बोथ साइड बाय cos स्क्वायर थीटा. सो LHS विल बी, सो लेट राइट गिवन, व्हाट इज गिवन, दैट इज 1 प्लस sin square theta is equal to 3 sin theta into cos theta. So let's divide both side by cos square theta. So it will be 1 by cos square theta plus it will be sin square theta by cos square theta is equal to 3 sin theta into cos theta by, ये वन टर्म है ना, by cos square theta. Clear? Now 1 by cos square theta. Yes, so you know that sec theta is equal to 1 by cos theta. Similarly, sec square theta is equal to 1 by cos square theta. So instead of writing 1 by cos square theta, we will write it as sec square theta plus sin square theta. Just a minute. Yes, sec square theta plus sin square theta by cos square theta is equal to tan square theta is equal to, here 1 cos theta and 1 cos theta cancel, it will be 3 sin theta by cos theta is tan theta. Okay, clear? Now here is sec square theta. We know the formula, that is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So in the place of sec square theta, I can write 1 plus tan square theta. So let's write it here. 1 plus tan square theta plus tan square theta is equal to 3 tan theta. Clear? Okay. Now 1 plus tan square theta plus tan square theta, 2 tan square theta is equal to 3 tan theta. Clear? Let's highlight it. Now let's transpose this part to this part. It will be 2 tan square theta minus 3 tan theta plus 1 is equal to 0. Now just think, let tan theta is equal to x. So if you put x in place of tan theta, we will get 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0, which is a quadratic equation. And we know how to solve it. Splitting this middle term splitting,
विल स्प्लिट दिस टर्म इनटू, ऐसे दो नंबर बताओ जिसको ऐड करने से 3 होगा और मल्टीप्लाई करने से 2 होगा. मल्टीप्लाई करने से 2 होगा एंड ऐड करने से 3 होगा. इट्स 2 1 जार 2, 2 1, 2 + 3. सो लेट्स राइट इट. 2x square minus 2x minus x plus 1 is equal to 0. So taking common 2x whole into x minus 1 minus 1 common is equal to 0. Taking x minus 1 common from both, it will be 2x minus 1 is equal to 0. Now what will happen? Either x minus 1 is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0. That implies x is equal to 1, or this implies x is equal to 1 by 2. What is that x? X is tan theta. So let's put tan theta in place of x. That is tan theta is equal to 1, or tan theta is equal to 1 by 2. See, we have what we have given. We have given to prove that tan theta is equal to 1 or 1 by 2 and hence proved. Clear? Next question करें. Next question is, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. sin theta is equal to 12 by 13. Find sin square theta minus cos square theta by 2 sin theta into cos theta into 1 by tan square theta. तो बच्चों जब ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे रेशियो वाला क्वेश्चन, अगर ऐसे रेशियो वाला क्वेश्चन आए, वी नो व्हाट इज साइन थीटा. साइन थीटा इज p by h. साइन थीटा इज p by h इज इक्वल टू 12 by 13. सो व्हाट इज b? b will be 5, as 5, 12 and 13 are trigonometric ratios. So we find b from p and h. हमें पूछी गई है क्या? sin square theta, cos square theta and tan square theta. So from this value, let's find first what is sin theta. Sin theta, we have given sin theta, that is 12 and 13. Let's find cos theta. Cos theta is equal to b by h, where b is 5, h is 13. And tan theta is equal to p by b, where p is 12, b is 5. So we get a value of cos and sin theta. Let's put it the value here. It will be sin square theta, that is 12 by 13 square minus cos square theta, that is 5 by 13 square divided by 2 into sin theta is 12 by 13 into cos theta is 5 by 13 into 1 by tan square theta is 12 by 5 का स्क्वायर. सो लेट्स सॉल्व इट. आप कर पाओगे ना सॉल्व इसे? चलो इसको आप सॉल्व करो और मुझे मैसेज करो. और 12 का स्क्वायर 144 by 169 minus 25 by 169 divided by 24 इंटू 5 बाई 169. इसको ऐसे में लेके आप कट कर सकते हो. इंटू इट विल बी 1 बाई 144 डिवाइडेड बाई 25. इसको रेसिप्रोकल करके अभी मैंने कर लिया, बाकी आप करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी तरह से करना. मैं ये नहीं कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा, इसी तरह की क्वेश्चन आएंगे आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. यस, ये क्वेश्चन भी बच्चों इम्पोर्टेंट है. मतलब कि हाँ, या आपको वैल्यूज भी याद रखने हैं. आपको 3 बातें मैंने कहा था याद रखने के लिए. एक तो द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज and the formula of the trigonometric ratio, that is sin theta is equal to p by h and cos theta is equal to b by s, and the identities, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and all that. तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है, तो वैल्यू वाला क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको सारे वैल्यू याद रखने हैं. सो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ईजी है. 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन. 2 होल इंटू cos स्क्वायर 45. वी नो वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1 by √2, इसका स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 60. tan 60 इज √3, उसका स्क्वायर, माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 इज 1 by √2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 60 इज √3 स्क्वायर.
divided by tan 30 is 1 by root 3 plus cos 60 is 1 by root 3. Clear? So let's solve it. 2 whole into 1 by 2 plus 3 minus 6 whole into 1 by 2 minus 3 divided by 2 by root 3. So इसको सॉल्व करते हैं. 2 into 2 7 by 2 that is 14 by 2. So इसको हम लिख सकते हैं 14 by 2 minus it will be 6 into minus 5 by 2. So minus minus plus 3 plus 15. इसको भी कैंसिल 7 हो जाएगा ना. इट विल बी 7 प्लस 15 बाई नीचे 2 बाई रूट 3. इट विल बी 22 रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 11 रूट 3. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में. आप सारे वैल्यूज याद करके एग्जाम में जाना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. यस, ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है. We have given that sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to root 3 by 2. Find a and b. तो ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले sin a plus b is equal to 1 गिवन है. sin की कौन सी वैल्यू, मतलब किस एंगल की वैल्यू 1 है. ये sin 90 is 1. So instead of 1 I will write sin 90. So sin a plus b is equal to sin 90. What does it implies? It implies that is a plus b is equal to 90. This is equation 1. Again here we have given that cos a minus b is equal to root 3 by 2. cos की कौन सी एंगल की वैल्यू root 3 by 2 है. We will write it cos a minus b is equal to cos 30 की वैल्यू है root 3 by 2. cos 30 cos 30 is, yes, cos 30 is root 3 by 2. So it will be a minus b is equal to 30, equation 2. So a plus b is 90, a minus b is 30. After solving this two equation, let's add it by the method of elimination. We know by adding it 2a is equal to 120. a is equal to 60 degree. So a की वैल्यू मिल गई. By putting the value of a here, we will get b is equal to 90 minus 60 is equal to 30. a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई. बच्चों एग्जाम में जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो उस पर अंडरलाइन करके उसका हाईलाइट करना और जो आंसर आएगा ना उसको ऐसे बॉक्स में लिखना. बिकॉज हमारा जो आंसर सीट होगा वो थोड़ा अट्रैक्टिव होगा एंड इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 बाई sec, ये हमें प्रूव करनी है. tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cos थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा. ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. तो ऐसे क्वेश्चन आए तो करना क्या है. तो लेट्स स्टार्ट विद LHS. ओके, आप कहीं भी साइड से करो तो इट विल बेटर टू स्टार्ट विद LHS. व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव गिवन दैट sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1. ओके, तो यहाँ पे sec थीटा और tan थीटा गिवन है एंड मैंने बताया था आपको फॉर्मूला दैट इज वी हैव द रिलेशनशिप. sec और tan में क्या रिलेशनशिप है. दैट इज वन फॉर्मूला दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो here 1 is present. So in this place we can write sec square theta minus tan square theta. So let's put it here. It will be sec theta plus tan theta minus जो 1 की जगह let's write sec square theta minus tan square theta. ओके, नीचे कैसे लिखते हैं tan theta minus sec theta plus 1. क्लियर. अभी देखो ये जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वी हैव ए फॉर्मूला दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल इनटू a माइनस b.
in this place we can put this identity and the equation will be the statement will be sec theta plus tan theta माइनस इसकी जगह लिखते हैं sec theta plus tan theta होल इंटू sec theta माइनस tan theta। ओके, नीचे का वैसे ही रखते हैं tan theta माइनस sec theta प्लस 1। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे sec theta प्लस tan theta है, यहाँ भी sec theta प्लस tan theta है। सो न्यूमरेटर से लेट्स टेक a sec theta प्लस 1 theta प्लस tan theta कॉमन। ओके, तो व्हाट इट विल बी by taking common sec theta plus tan theta, what will remain? It will remain 1 minus sec theta minus tan theta। नीचे वैसे ही रखते हैं tan theta minus sec theta plus 1। तो by simplifying this we will get sec theta plus tan theta whole into 1 minus sec theta plus tan theta। ओके बच्चों, हम जो नीचे वाला स्टेटमेंट है इसको देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1 माइनस sec theta प्लस tan theta। क्लियर? देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल रिमेन? So we'll have sec theta plus tan theta। ओके, पर आंसर में हमें क्या पूछा गया है? 1 cos theta। RHS में हमें गिवन है that we have to find out cos theta by 1 plus sin theta। तो हमें अभी sec और tan को कन्वर्ट करते हैं sin और cos में। तो I can write sec theta as 1 by cos theta and tan theta को लिख सकती हूँ sin theta by cos theta। सो एलसीएम लेते हैं cos theta रूल भी 1 प्लस sin theta। ओके, बट स्टिल यू डिडंट गेट आवर आंसर। हमें इसकी रेसिप्रोकल चाहिए, नीचे चाहिए 1 प्लस sin theta। सो हमें नीचे sin theta चाहिए, 1 प्लस sin theta चाहिए, ऊपर cos theta चाहिए। सो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर। हमने जो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पढ़ा था ना, हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करें। लेट्स मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस साइन थीटा। नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा। ओके, सो व्हाट विल गेट? इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos theta into 1 minus sin theta। Just a minute, what we have given here? हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा चाहिए थी, cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। हमें नीचे 1 माइनस साइन थीटा चाहिए थी, तो इसीलिए हमने बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन थीटा में डिवाइड किया। So let it as it is 1 minus sin square theta is cos square theta, cos square theta by नीचे cos theta whole into 1 minus sin theta। So 1 cos theta here cancel, it will be cos theta by 1 minus sin theta। बच्चों क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन आज जैसे पूछा गया है क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना। देखो बाय द टाइम इट विल हैपन, मतलब कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन देख के आपको घबराना मत। आप एलएचएस से धीरे धीरे स्टार्ट करो, जो भी फॉर्मूला उसके रिलेटेड है उसको पुट करो एंड डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। बच्चों यहाँ तक तो आप सब आ जाओगे। यहाँ तक मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें नीचे 1 माइनस साइन थीटा चाहिए थी, तो मैंने अगर नीचे हमें चाहिए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगी 1 माइनस साइन थीटा, तो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। एंड बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट एंड इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पर आपको इसको प्रैक्टिस करके जाना। ऐसे को इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो लेंदी तो होगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
ये हमारा बुक का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे और आए तो ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो करना क्या है, विल स्टार्ट फ्रॉम द LHS, दिस इज द LHS। ओके, सो इसको अगर मैं स्प्लिट करूं, आई कैन राइट इट 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर रूट बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस इसको 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट। ओके, नाउ लेट्स टेक LCM ऑफ दिस, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा into 1 plus sin theta, मैं टोटल की स्क्वायर, लेट्स स्क्वायर रूट। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस, इट विल बी 1 प्लस साइन थीटा। देखो रूट टू मल्टीप्लाई होंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, इट विल बी 1 प्लस साइन थीटा प्लस इट विल बी 1 माइनस साइन थीटा। मल्टीप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, हमें पता है ना रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2। सो अगर दो सेम चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो की जिसकी स्क्वायर रूट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट उसका नहीं रहेगा। ओके, तो ये साइन थीटा कैंसर, इट विल बी 2 बाई a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो 2 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट दैट इज कॉस थीटा, इट विल बी 2 बाई cos theta and no 1 by cos theta is sec theta, it will be 2 sec theta। ये इजी है बहुत और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये क्वेश्चन भी हम एग्जाम से पहले देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसी तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आए, देखो बच्चों पहले क्वेश्चन को देखना क्या गिवन है और उससे हमें क्या फाइंड करनी है। वी हैव गिवन दैट x बाई a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1, x by a sin theta minus y by b cos theta is equal to 1, and we have to prove that x square by a square plus y square by b square is equal to 2। तो हमें यहाँ पे x गिवन है, पूछा क्या गया है x स्क्वायर, तो लेट्स स्क्वायर इसका बोथ साइड को स्क्वायर करते हैं। क्या पूछा गया है उसी से देख के करना है। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड फ्रॉम, ये जो इक्वेशन 1 है इसको दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, इट विल बी x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली इसको भी करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, x बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है। सो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख मत देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। सो लेट राइट इट x बाई ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y बाई बी साइन थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू cos theta, x by a cos theta into y by b sin theta is equal to 1 का स्क्वायर 1। क्लियर, नाउ इट विल बी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2xy बाई ab cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये आपका इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 1। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो व्हाट विल गेट, विल गेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2xy बाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। लेट इट बी इक्वेशन 2। तो जो दोनों इक्वेशन हमें गिवन थी, मैंने बस उसका स्क्वायर किया, दोनों को लिखा, फर्स्ट का स्क्वायर किया, ये आया, सेकेंड स्टेटमेंट जो गिवन था उसका भी स्क्वायर निकाला और ये है।
अभी करना क्या है, हमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर निकालनी है। तो यहाँ पे प्लस है, सो लेट्स ऐड दिस टू इक्वेशन। अभी हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी गेट, देखो एक्स स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को इनको ऐड करती हूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन जाएगा तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे +2, ये दोनों टर्म सेम है, बस यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये कैंसलिंग हो जाएंगे, इट विल बी 1 + 1 2, क्लियर। We know the formula identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and by putting it here we will get x square by a square into 1 plus y square by b square into 1 is equal to 2. By simplifying this we will get x square by a square plus y square by b square is equal to 2. Hence proved. क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपको जो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन में आते होंगे, यही ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्या पूछी गई है, कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे की जा सकती है, डायरेक्ट मत करना, रॉफ में निकालना, पहले कौन सी फॉर्मूला पुट करने से हमें जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें मिल पाएगी। तो वैसे ही क्वेश्चन को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है, ये पूछा गया था एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर। इफ √3 cot square थीटा प्लस 4 cot थीटा प्लस √3 इजिकल, देखो ऐसे क्वेश्चन को देखो थोड़ा, ये सिमिलरली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद तो दिला ही देगी, समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग। सो वी कैन राइट लेट cot थीटा इजिकल टू x, by putting x in place of cot theta we'll get √3x square minus 4x plus √3 is equal to 0, क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। 4 को हम स्प्लिट करेंगे ऐसे दो नंबर में, जैसे इसको मल्टीप्लाई करने से 3 होगा और ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 4 होगा, दैट इज 3 1 = 3। सो आई कैन राइट इट एज √3x square minus 3x minus x plus √3 is equal to 0. That implies taking √3x common will be get x minus √3 minus 1 x minus 1, sorry, yes, x minus √3 is equal to 0. By taking x minus √3 common from both we'll get √3x minus 1 is equal to 0. So either x minus √3 is equal to 0 or √3x minus 1 is equal to 0. तो यहाँ से we can find x is equal to √3 और here we can get x is equal to 1 by √3. तो x क्या है, x is cot theta, x is cot theta, we have taken what is cot theta. So let's put it here, cot theta is equal to √3 by here cot theta is equal to 1 by √3. मैंने जो पहली क्वेश्चन किया था ये उससे सिमिलर है, हमें cot theta मिल गई। We know tan theta is equal to 1 by cot theta, यहाँ से अगर हम tan theta निकालें it will be 1 by √3, अगर यहाँ से हम tan theta निकालें it will be √3, उसका रेसिप्रोकल। हमें पूछा गया है cot square theta plus tan square theta. For this value, first let's find this value, that is cot square theta √3 का स्क्वायर प्लस tan theta क्या होगी 1 by √3 का स्क्वायर, there will be 3 plus 1 by 3 is equal to 10 by 3, 3 3 is 9 plus 1 that is 10 by 3. ये आंसर होगी, और यहाँ पे दोनों आंसर आएगी, और आंसर भी सेम। अगर ये वैल्यू पूछा जाए तो इट विल बी 1 by √3 का स्क्वायर प्लस tan theta is √3 स्क्वायर, आंसर विल बी सेम, that is 1 by 3 plus 3 is equal to 10 by 3, आंसर विल बी सेम। दोनों वैल्यू कोई भी पुट करो आंसर सेम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।